Hello my dear students, in this video we will discuss about the lesson force class 6 ICSE. This is part 3rd video. In the previous two videos we have discussed about the force and its effect and force of friction, that is a frictional force and its type. But in this part of video we will discuss about the methods of increasing and decreasing frictions. If you want to watch the previous video, I have given the link in the description box, so please check it. So let's start. Methods of increasing and decreasing frictions. My name is Sadashiv Takde and you are watching Knowledge Planet. So first of all we will discuss about the advantages of the frictions. So what are the advantages of friction? If the friction would not exist, there would be no grip in between the surface and body. Hence, friction plays a very important role in our day-to-day lives. Some examples of the advantages of friction discussed below. You can see the first figure. In this figure, यहाँ पे क्या है? मैचस्टिक. We are going to ignite it. अगर इस मैचस्टिक और इस बॉक्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो इज इट पॉसिबल टू इग्नाइट दिस मैचस्टिक? ये पॉसिबल है क्या मैचस्टिक इग्नाइट होना अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज if there is no friction then it will not ignite, so the friction is necessary. So this is a first advantage. The second one, while writing, हम जब लिखते हैं तो कागज और पेन इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है. if there is no friction then we are not able to write it. so लिखने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम आगे जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे. So that it will not be possible while writing. So the friction is required while writing. See another example. In this figure you can see here the high speed truck coming behind, but by using the brake देने से क्या होगा? वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई होगा और स्पीड क्या हो गई? रिड्यूस, कंप्लीटली रिड्यूस हो रही है. सो स्पीड विल कंप्लीटली डिक्रीजेस टू फ्रॉम हायर स्पीड टू लोअर स्पीड. आप यहाँ देख सकते हैं हाई स्पीड से ट्रक आ रहा था तो क्या हो गई? स्पीड डिक्रीज हो गई बाय अप्लाइंग ब्रेक. सो द फ्रिक्शन इज वेरी essential and required in our day-to-day life. In another more example, in every day we are walking from the surface, we are running from the surface on the ground. If there is no friction in between the ground and our foot, is it possible to walk or is it possible to run? भागना, रनिंग करना या वॉकिंग करना पॉसिबल है क्या? फ्रिक्शन नहीं है तो नॉट पॉसिबल. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए फ्रिक्शन इसेंशियल है. Now we will discuss about the disadvantages of the friction as well as अगर कुछ advantages है तो कुछ disadvantages भी है friction के. तो कौन से हैं disadvantages? Apart from the various disadvantages of the friction, there are certain disadvantages of friction. So let us discuss them. The first one, here because of friction there is a loss or there is a decay of the tires. The grip of tire will be lost. The tire will be lost. Here we are using the shoes, slippers, so that shoes and that slippers, after walking, after running, what will happen? The sole of that shoes or slipper will reduce to the size. उसकी क्या हो गई? रिड्यूस हो गई. उसका फ्रिक्शन हो गया, इसलिए क्या हो गया? उसका लॉस हो गया, उसका डीके हो गया. So these are the advantages. There is a loss of surface by अप्लाइंग द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होने से क्या होगा? उस सरफेस में लॉस होगा, सरफेस के अंदर डीके होगा. लेट्स डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शंस. इन आवर डेली लाइफ वी जनरली टेंड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शंस. फॉर लिफ्टिंग वेट, हमें वेट लिफ्ट करना है तो फ्रिक्शन हमें कम करना पड़ेगा. वेट लिफ्टर्स रब सम रफ सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, देयरबाय प्रोवाइडिंग अ बेटर ग्रिप. बेटर ग्रिप करने के लिए ग्रिप आनी चाहिए तो हाथ में अगर समझो पसीना आ रहा है काम करते वक्त तो हाथ में ग्रिप बैठेगी क्या? नहीं बैठेगी. सो दैट्स वाई क्या करते हैं हम? हाथ मिट्टी में डालते हैं या कोई रफ सब्सटेंस हमारे हाथ के ऊपर लगा देते हैं तो क्या होगा? उससे ग्रिप आएगी पकड़ने में. तो ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. सो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, द नंबर वन, बाय मेकिंग द सरफेस रफ और अनइवन, friction can be increased.
You must have seen a long, narrow and rough grooves in the tire of cars or bicycle or truck or bus, etc. These grooves increase the friction and help avoid any sliding or skidding on the surface or on the road. You can see here in the tire different grips are there, different grooves are there. So why these grooves or why these grips are available in the shoes also, in the slipper also, all the grips are there. Why grips are there? So to increase the friction, friction increase होगा तो क्या होगा, स्लाइडिंग डिक्रीज होगा, हम स्किड नहीं करेंगे, हम स्लिप नहीं होंगे. तो टू इंक्रीज द फ्रिक्शन दिस ग्रिप शुड बी रिक्वायर्ड. तो हम ग्रिप देना पड़ता है. अच्छे कंपनी के जो टायर है उसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्या रहते हैं, ग्रिप रहते हैं. ग्रिप क्यों देना है? टायर स्किड नहीं होना, स्लाइड नहीं होना, गाड़ी स्लिप नहीं होना, इसलिए हम टायर को अच्छी ग्रिप वाले टायर यूज करते हैं. कुछ समय बाद ये जब ग्रोज या उसको हम ग्रिप बोलेंगे, ये जब उसका लॉस हो गया, वो जब घिस जाते हैं तब हम क्या करते हैं, टायर चेंज करते हैं. सेम केस में शूज हम चेंज करते हैं. ओके, सो दिस इज अ मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. सेकंड, ड्राइंग द सरफेस इज अनदर वे ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. Sand and gravels are thrown on the slippery ground during the rainy season to increase the friction. अगर रेनी सीजन है तो रोड क्या होता है, स्लिपरी रोड होता है, तो उसके ऊपर ग्रेवल्स डालते हैं या सैंड डालते हैं. तो क्यों? उस स्लिपरी रोड में कुछ फ्रिक्शन, मतलब अपोज करने के लिए कुछ तो होना चाहिए. तो क्या होगा, उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा. तो दिस इज अनदर मेथड टू इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. Now we will discuss about the method of decreasing friction. अभी किसी चीज में हमें फ्रिक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो उसको हम फ्रिक्शन डिक्रीज करना है, कम करना है. सो फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय द पॉलिशिंग द सरफेस. सरफेस को हम पॉलिश कर सकते हैं. द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस इज रिड्यूस्ड बाय दिस मेथड. यू कैन सी दीज आर द टू डिफरेंट सर्फेसेस, टू ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ऑयल है. सो ऑयल क्या काम करेगा, टू डिक्रीज द फ्रिक्शन. लुब्रिकेंट है ये. सो सेम हियर, लुब्रिकेंट डालने से क्या होगा, ये इसके अंदर, दोनों के अंदर फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा. यू कैन सी हियर, एज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. प्लेसिंग अ स्मॉल स्टील बॉल और cylinder between the two moving surfaces allow one surface to roll over the other, thereby reducing friction. यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या है, स्टील के या मेटल के क्या है, बॉल्स यूज किए हैं. उसको हम बेरिंग बोलते हैं, बॉल बेरिंग, क्योंकि बॉल है अंदर, तो बॉल क्या करेंगे, रोल करेंगे. रोल करना मतलब स्लाइडिंग से रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, कम है. दैट्स वाई to reduce friction ball bearing is used. Now methods of decreasing friction. Another method, streamlining body मतलब आगे जो शेप है वो क्या है, कम है. क्यों कम करना है शेप, आगे एरोप्लेन का शेप ऐसा क्यों है, फिश का शेप ऐसा क्यों रहता है, why? Because to reduce the friction, to decrease the friction. अगर सामने से फेस अगर बड़ा रहेगा, अपनी बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में सामने क्या रहता है, सरफेस कम होता है, बुलेट के जैसे आगे छोटा करते हैं साइज. क्यों? क्योंकि आगे जब उस हाई स्पीड में जाएगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन किसके साथ, एयर के साथ फ्रिक्शन होगा. तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आगे क्या होना चाहिए, उसका सरफेस, उसका एरिया क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, कम होना चाहिए. सो दिस इज अनदर मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन और reduce the friction. Thank you my dear students. If you have any query, you can ask me in the comment section. Thank you.